بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں، یہ کہنا ہے بیرسٹر گوہر کا، اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یا گلا شکوہ کہہ لیجیے، یا روٹین جیسے چل رہی ہے اس کے حساب سے انہوں نے بات کی کہ آج بھی بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں ہو سکی ان کی فیملی کے ساتھ۔ ناظرین، فیملی میں کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ویک بھی دیکھا تھا، لاسٹ منگل کو، پچھلے منگل کو، کہ علیمہ بی بی کی جب ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس میں بھی کچھ ناخوشگوار سی صورتحال تھی، وہاں پہ کچھ گرفتار بھی ان کو کر لیا گیا تھا، بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو فیملی کا رائٹ ہوتا ہے، پرزنرز کا بھی رائٹ ہوتا ہے، اور اگر ایک دن فکس ہے تو جانیں گے کہ کیا ریزنز ہیں جو فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ جب سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو پھر فیملی کی ملاقات بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ایاز صادق صاحب نے آج، ویسے تو ایاز صادق صاحب کی کم ہی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں جب سے وہ سپیکر بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تھوڑا سا تنقید کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا، یہ کہنا ہے ایاز صادق صاحب کا۔ ناظرین، پچھلے دنوں یہ جو امریکی ارکان کانگریس کی بڑی دھوم تھی، وہ آئیں گے، کچھ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے، ڈائسپورا کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ڈائسپورا جو ہے تحریک انصاف کا، اس نے وہاں پہ کافی لابنگ کی ہے، کافی اس نے وہاں پہ محنت کی ہے، اور کوئی ایک وہاں پہ قرارداد بھی کوئی جو ہے وہ بھی پیش کی گئی ہے، کوئی بل شل بھی پیش کیے گئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں، پارلیمنٹ میں۔ اس سلسلے میں بہت ساری چہم گوئیاں تھیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ملاقات ہوگی یا یہ جو دورہ ہوگا کانگریس مین کا، امریکی ارکان کانگریس کا، یہ کافی فروٹفل ہوگا، اور تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو، کیونکہ انہوں نے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، یا جو اوورسیز اس وقت بنے ہوئے ہیں پاکستانی، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اسپیشلی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، جو تحریک انصاف کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے خاصی محنت کی ہے، دوسرے پاکستانیوں نے بھی محنت کی ہے جو تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے لنکڈ ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ملاقات کا جو ایک اثر تھا، ملاقات کے بعد کا جو اثر تھا، اس دورے کا جو اثر تھا، وہ زائل ہوتا نظر آ رہا ہے، ان کی محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا وہ فروٹفل رہا یا نہیں رہا۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، اس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر قرار دے دی ہے، اور فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا IMF پروگرام پہ عمل درآمد بہتر ہوا، اور فائنینسنگ تک رسائی میں بھی آسانی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ریٹنگ ایجنسی کے مطابق توقع ہے جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 6% ہو جائے گا، اور درمیانی مدت میں یہ خسارہ تقریباً 5% تک رہنے کی امید ہے۔ مالی سال 2024 میں یہ خسارہ تقریباً 7% تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے معاشی چیلنجز بدستور موجود ہیں، پاکستان میں معاشی اصلاحات کا تسلسل برقرار رکھنے یہاں میں، یہ تو ڈیفینیٹلی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پاکستان کو اس طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں، اب ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ حکومت نے 6 نئی نہروں کے منصوبوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہیں، اور ناظرین، وفاقی وزیر ہیں برائے آبی وسائل معین وٹو نے 6 نئی نہروں سے متعلق جو تفصیلات ایوان میں پیش کی ہیں، اس میں وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پنجاب کے لیے چھوٹی چولستان نہر کے منصوبے کے لیے ارسا نے جنوری 2024 میں NOC جاری کیا تھا۔ یہ منصوبہ حکومت پنجاب کی مالی معاونت سے مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ منصوبے کی کل لاگت انہوں نے ڈیٹیل بتائی۔ پھر حکومت سندھ نے 15 نومبر 2024 کو ارسا کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کی اسمبلی ارسال کی۔ پھر وزیر آبی وسائل کے مطابق انہوں نے گریٹر تھل کینال کے لیے ارسا نے مئی 2008 میں پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ اس کے بعد برساتی نہر منصوبے کے لیے ارسا نے ستمبر 2002 میں سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہری منصوبے کا NOC ارسا نے اکتوبر 2003 میں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے لیے شروع کیے گئے نہری منصوبے کا NOC ارسا نے اکتوبر 2003 میں جاری کیا تھا، اور سب کے علاوہ خیبر پختونخوا کے لیے CBRC نہر کو ارسا نے اپریل 2004 میں NOC دیا تھا۔ ناظرین، اس سب پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ ارسا نے سندھ کو زیادہ پانی دینے کی بجائے پنجاب حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے پیر کو ناظرین پانی کی تقسیم پر انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی کہ ارسا کو خط لکھا تھا، اور کہا تھا کہ خریف کی فصلوں کے لیے پانی کی 43% کمی ہے، اس میں پنجاب کے حصے کا زیادہ پانی جو ہے سندھ کو دیا جا رہا ہے، اور
पंजाब का पानी जो है वो उसको उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा, और जिसको सिंध हुकूमत ने पंजाब की तकसीम पे पानी की तकसीम पे पंजाब हुकूमत का हिस्सा को लिखा गया ख़त मुस्तरद कर दिया है। इस सब पे डिबेट करेंगे कि ये जो कैनाल्स का इशू है ये कभी सॉर्ट आउट हो भी पाएगा कि नहीं होगा। हमारे यहाँ पे इश्यूज़ बन जाते हैं, वो हल नहीं होते हैं, क्योंकि नाज़रीन हमारे यहाँ के लोग हल करना चाहते नहीं हैं। उनको सियासत करनी है, किसी ना किसी इशू पे उन्होंने सियासत करते रहना है। एक के बाद एक नया इशू जानबूझ के क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपने लोगों को बता सके कि हम आपके लिए कितनी फ़ाइट कर रहे हैं, हम आपके साथ कितने ऑनेस्ट हैं, हम देख लीजिए आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। और एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है, ऑप्टिक्स कुछ और होते हैं। हमारे यहाँ जो ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं वो रियलिटी होती नहीं है। तो इस पर भी डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में कि ये इसकी ऑप्टिक्स जो हैं वो एक्चुअल रियलिटी क्या है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ भट्ट साहब में सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पाशा साहब आप बता दें कि ये जो इमरान खान ने कहा कि हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ, बैरिस्टर गौहर के उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही थी तहरीक इंसाफ के अंदर से ही, स्पेशली स्वाति साहब की जो स्टेटमेंट्स आई थी कि इस्टाब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दे दिया। उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें वो कुछ हल्फन बात कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है एक मुसलमान होने की हैसियत से जब हल्फन बात आ जाती है तो उसके आगे फिर आप बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो बात है बैरिस्टर गौहर की, अब इसको क्या समझा जाए? शुक्रिया मिस शिराजी। बात यह है कि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन 2024 हुआ, 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इमरान खान की पीटीआई जो है वो बड़े हॉट वाटर के अंदर थी। उनका निशान छीन लिया गया था और एक खौफ व हरास की कैफियत तारी थी इमरान खान के वोटर्स पर। उसके बावजूद इमरान खान के जो वोटर्स थे उन्होंने ढूंढ के आज़ाद उम्मीदवारों को, यानी वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई की हमायत हासिल थी, उनको वोट दिए। और इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक कि जो आज़ाद उम्मीदवार सपोर्टेड बाय बैक बाय पीटीआई, उन्होंने 1 करोड़ और 86 लाख वोट हासिल किए। और इस एतबार से 2024 में जो पॉपुलर वोट हासिल करने वाली सबसे बड़ी जमात है वो पीटीआई थी। पीटीआई है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 46 लाख पॉपुलर वोट हासिल किए और उन वोटों को उन्होंने इलेक्टोरल वोटों में जिस वक्त कन्वर्ट किया तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। इमरान खान साहब की जमात अपने पॉपुलर वोट को इलेक्टोरल वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकी, जबकि नून लीग ने अपने पॉपुलर वोट को इलेक्टोरल वोट में कन्वर्ट करके सबसे सिस्टम ने भी नून लीग का साथ दिया था। इलेक्शन के अच्छा, जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद हमने देखा था कि कितनी ही पीटीआई की सीटें हैं जिसमें बाद में रिकाउंटिंग की गई है और उसमें पीएमएलएन के लोग जीत गए, तो वो सीटें भी तो उनको बाद में नवाजी गई थी। ये दुरुस्त आपने कहा। ये जिस तरह 2024 में इलेक्शन हुए इसी तरह 2018 में हुए थे, उसी तरह 2013 में हुए, उसी तरह 2008 में हुए। ये उसी निज़ाम में उसी तरीके से होते रहे। वो क्योंकि हमारा मौजू नहीं है तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता। अब इमरान खान साहब की जो इस वक्त पब्लिक परसेप्शन या जो पॉपुलैरिटी है वो उनके उस नैरेटिव पर मबनी है कि वो डट कर खड़े हैं और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए थे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक की एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए, फिर उन्होंने दूसरी एस्टेब्लिशमेंट को, मुशर्रफ की एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और वो लीडर बने। इसी तरह इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर वो इक़्तिदार में आए। बीबी मोहतरमा की भी तो पहली जो इक़्तिदार में आने की बारी थी वो भी इसी तरह से। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि मुकाबला अब नून लीग और इमरान खान और पीटीआई का, इसलिए मैं उन्हीं का हवाला दिया है। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह ललकारा एस्टेब्लिशमेंट को और बुरी तरह ललकारा, और उनका जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रोल था, गैर आइनी जो रोल था, उसको जिस तरह
आश्कारा किया पब्लिक के सामने, वो बहरहाल एक बड़ा कमेंडेबल, बड़ी जुर्रत का काम है। वैसे ये इस जुर्रत की इब्तदा जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़े धीमे सुरों में और बड़े बच बचा के, बड़ी यानी पाँव उन्होंने किसी गीली जगह पर नहीं रखा, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा था। लेकिन एहतसाब के नारे लगाते रहे थे, लेकिन एहतसाब की बात पे नारा लगा के पीछे हट जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा और मुसलसल ललकारे चले जा रहे हैं, तो उससे मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब डील करना भी चाहें तो उनके जो चाहने वाले, उनके जो मानने वाले हैं, वो उसको कबूल नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स अब जिस पिलर पर खड़ी है वो यही है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है और डट के खड़ा है इमरान खान। और अब अगर इमरान खान साहब डील करेंगे तो उनका वो जो एक पॉलिटिकल कद है वो ढह जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब, प्रॉब्लम ये है बट साहब कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो कबूलियत है ना वो नहीं है। ये हमने इलेक्शंस की ट्रांसमिशन में भी डिस्कशन की थी कि कबूलियत उनकी नज़र नहीं आती, और उस वक्त थी भी नहीं, आज भी नहीं नज़र आ रही है किसी सूरत में। आइंदा कुछ आने वाले दिनों में कुछ वो कुछ नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन मकबूलियत तो उनकी है अपने जो उन्होंने एक बयानिया बनाया उसकी बेस पे अवाम के अंदर। अब अगर वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हटते हैं, अपने बयानिए से पीछे हटते हैं, तो फिर तो मकबूलियत भी नहीं रहेगी ना। तो ये जो आज़म सवाती की पिछले दिनों में जस्टिफिकेशन सामने आई थी, आज बैरिस्टर गौहर ने फिर बता दिया है कि इमरान खान ने कहा कि हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ, इसका मतलब वो अपने बयानिए पे खड़े हैं, आज भी डट के खड़े हैं। तो ये जो सवाती साहब ने स्टेटमेंट्स दी थी, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज किया है इमरान खान के बयानिए को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फायजा आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपके प्रोग्राम में बड़े ही सीनियर और मंझे हुए एनालिस्ट बैठे हुए हैं और उनकी गुफ्तगू सुनने वाली भी है और समझने वाली भी है। मैंने जो उनकी गुफ्तगू में समझा है, जिसमें उन्होंने बयान किया है कि हर कोई यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट के कंधों पे ही चढ़कर आता है, ये एक सच्ची बात है, कड़वी और सच्ची बात है। इसका मतलब जब ये बात करते हैं तो फिर तो इलेक्शन का जो मोमेंटम है वो तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो वोट का हक है, हम तो उसको पॉपुलैरिटी वोट में ला ही नहीं सकते। अब ये है कि अगर यही सिस्टम हम समझते हैं जिसका तसलसल शुरू से चलता आ रहा है और अभी तक है, तो फिर वो अवाम की राय किधर है, फिर वो डेमोक्रेसी किधर है? ये सारे सवालिया निशान है जो इस सिस्टम के ऊपर हैं। और बाकी जो आपने बात की है, देखें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जेब में वो कहा करते थे कि मेरे जेब में खोटे सिक्के हैं। और जब कभी बानी पीटीआई हुकूमत में आए थे तो मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि उनकी जेब में सारे मुनाफिक सिक्के हैं। वो हर कोई यहाँ पर अपनी एक सियासी दिहाड़ी लगाना चाहता है। हो सकता है इमरान खान इस बारे में फेयर हों, जो नज़र भी आता है कि वो चाहते हैं कि वो इस सिस्टम को गिरा दें, इस सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर दें, जो भी आप समझ सकते हैं कि दफन कर दें। जिस सिस्टम के ज़रिए से अवाम की सुनवाई नहीं होती, उनके पास वोट का हक नहीं है, ये डेमोक्रेसी चल नहीं पा रही, यहाँ पर आइन फंक्शन नहीं कर पा रहा और बैठा हुआ जो सिस्टम है इसको हिला दिया जाए। यकीनन हो सकता है कि वो इस बारे में विलिंग रखते हों, लेकिन जो उनके साथ लोग जो सियासी दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं, जो बतौर इन्वेस्टर इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, जो पैसे लगाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर अवामी सतह पर अवाम के पास उसका हक लेने या उसका हक देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। बट साहब, ये जो पिछले दिनों ये बात की जा रही थी कि पीएमएलएन की जानिब से क्लेम किया जाता है, बारह बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने ये बात की है कि पीटीआई खुद जमानत है हमारी हुकूमत की, यानी कि ये लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। तो इसका मतलब ये बयानिया या ये बात उनकी दुरुस्त है? बिल्कुल। मैं तो देखिए बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर इतना मैच्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं इसे ऑब्जर्व कर लें या मुशाहदा कर लें या एनालिसिस कर लें जो अपने लिए इंसान करता है, इसमें बेशक जितनी भी इशराफिया है इमरान खान साहब के साथ ही है। हमने उनके इलेक्शन में देखा, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा जिसे हम समझते हैं कि इलेक्ट होकर वो ईवानों में गया, जिसकी जो स्ट्रेंथ थी वो मकबूलियत थी।
पैसा था, पैसे के जोर पर सबने टिकटें खरीदी और पूरा पैसे के जोर पर ही उनकी हुकूमत में आने के बाद यहाँ पर जो डेजिग्नेशन थे, जो उनकी तंजीम के अंदर बिकते रहे, सौदेबाजी होती रही। अब वो लोग कैसे चाहेंगे, यहाँ पर 24 करोड़ लोग जो उनको गुलाम की शक्ल में मिले हुए हैं, जो ये जागीरदार हैं, जो ये मिल ओनर हैं, ये जो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि सियासत के पर्दे में आते हैं, ये सरदार जो वडेरे हैं, क्या अगर ये इतने सिंसियर हो जाएं फायदा, तो आज तो ये गुर्बत खत्म हो जाती है। फिर तो एक सवाल मेरा भट्ट साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है पाशा साहब से। पाशा साहब, हमारी आवाम 24 करोड़ आवाम जो है वो गुलाम है या इस पे हुक्मरानी करने वाली सोच गुलाम है? आपने बहुत खूबसूरत बात कही मैडम। पाकिस्तान में जब भी कभी इस तरह के मामलात की बात हुई है तो पाकिस्तान के अवाम ने मेच्योरिटी का सबूत दिया, अपने राइट को, अपनी राय को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, तन मन और धन की कुर्बानी पेश की। तो हम अवाम को तो मैं समझता हूं कि हमें ब्लेम नहीं देना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर हमारे हुक्मरान जिनका जिक्र आरिफ भट्ट साहब ने किया है, जो कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूजर, बेगर्स आर नॉट चूजर, ये बुनियादी तौर पर वो अशराफिया हमारी जो क़याम पाकिस्तान से पहले ही मुस्लिम लीग पर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उस पर काबज हो गई थी। आपको पता होगा कि 1946 में जो इलेक्शन हुए थे और मुस्लिम लीग ने जीते थे, तो उस वक़्त ये जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो जागीरदारों और ज़मींदारों पर मुश्तमिल थी, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, कायदे आज़म की मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि आने वाला वक्त जो है ये कायदे आज़म की मुस्लिम लीग का होगा। और हम देखते हैं कि फिर ये वही लोग, वही अशराफिया, वही मतलबी लोग जो हैं और उनकी औलादें जो हैं, चलते चलते आज पाकिस्तान के अंदर जो है ये हुक्मरानी कर रही हैं। बाप, दादा, चाचा, भतीजा, बेटी, ये सारे आते हैं। तो अवाम की जो हकीकी आदर्श हैं वो अभी तक हमें इस सिस्टम के जरिए ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन पाशा साहब, इससे पहले कि आप दूसरे पॉइंट की तरफ आएँ, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, आप दोनों का इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। ये चलें, ये बात तो डिस्कशन में आ गई कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे और वो डट के खड़े हैं। चलें, ये स्टेटमेंट सामने आ गई क्योंकि मुलाकात हो नहीं पा रही थी आज़म सवाती साहब को लेके, उनके स्टेटमेंट को लेके काफ़ी उबहम था, तो चलें ये क्लियर हो गया। लेकिन ये जो उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये किस बेस पे कदगन लगा रही है? हर प्रिजनर का राइट है कि उसकी फैमिली उससे जाके मिले। सियासी मुलाकातें आप करवा रहे हैं, आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवा रहे, और फिर पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या जेल अथॉरिटी इस कदर जो है ऑथोराइज हो गई है कि अपनी मर्जी से जिसकी चाहे मुलाकात करवा दे, जिसकी ना करवाए? अच्छा, आपने एक छोटा सा वो आज़म सवाती साहब की बात कही, तो बात ये है कि इमरान खान साहब से डील करने के हवाले से मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ आज़म सवाती साहब ही नहीं कर रहे, गंडापुर साहब भी और अमेरिका से 2-2.5 महीने पहले 6 रुकनी एक वफद आया था, उनकी भी मुलाकात कराई गई थी। तो इमरान खान साहब का तो ये है कि उनसे जो मिलता है, नवंबर में भी एक मुलाकात हुई थी जो कल रिपोर्ट हुई जी। तो इस हवाले से जो इमरान खान साहब को मिलता है और जो कहता है इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा तू कर ले, लेकिन जो पार्टी का एक्चुअल यानी इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल वर्जन है वो बहरहाल गौर अली खान साहब का ही तस्वर किया जाना चाहिए और वही इमरान खान साहब का एक्चुअल वर्जन है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि जो आज़म सवाती साहब ने कहा है वो भी दुरुस्त कहा है कि आज़म सवाती साहब इमरान खान साहब के पास गए, या इस तरह के और लोग जो इमरान खान साहब के पास जाते हैं कि इमरान खान साहब मैं को बातचीत करूं, और कहते हैं कर लो भी, बिस्मिल्लाह, वो कहते हैं चलो आप भी अपनी मर्जी करके देख लें, अपनी करके देख लें। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर, बट साहब बैरिस्टर गोहर का जो वर्जन है वो बाहर आके एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो इमरान खान साहब का वर्जन वो लेके आते हैं सामने, उनके स्टेटमेंट लेके आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है बैरिस्टर गोहर बाहर आके एग्रेसिव बात नहीं करते, उनका स्टाइल एक ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है कि वो जब बात करते हैं तो वो जो एग्रेशन होता है खान साहब का, या वो जो आगे से उन्होंने सख्त मैसेज दिया होता है, क्योंकि हमने इतने साल पॉलिटिक्स में उनको कभी जो है वो एग्रेशन के बगैर बात करते देखा नहीं है, वो सीधी सीधी बात करते हैं। तो जो बैरिस्टर गोहर का टॉकिंग स्टाइल है वो खान साहब का नहीं है। आपको नहीं लगता उस पर भी बात आके कहीं डिस्टर्ब हो जाती है कि खान साहब ने किसी और सेंस में बात कही होगी, हो सकता है वही सेंस सामने आई हो
लेकिन वो एक्सेंट वो ना हो। देखिए जी, जहाँ तक बात है गौहर अली खान साहब की, वो एक बड़े मुंझे हुए कानूनदान है और उनका एक स्टाइल है तहम्मुल से, बुर्दबारी से वो बात करते हैं। खान साहब एक अवामी नुमाइंदे हैं और उन्होंने शुरू से ही इस सिस्टम को ललकार के ही पूरी जनरेशन को अपने साथ मिलाया हुआ है। पूरी जनरेशन, जितनी भी यंग जनरेशन है इस वक्त हम देख लेते हैं ना कि यंग जनरेशन, बहुत सारे ऐसे भी अवामी हलके हैं जो कि सिस्टम के सिताए हुए हैं। खान साहब की जो सबसे बड़ी बात जो अगर फ़ायदा देखने वाली है वो ये है कि उनका पॉपुलर होने का जो वो है उसके पीछे मामलात क्या हैं। उन अवाम सताई हुई है, अवाम को किसी लीडर से कोई लेना देना नहीं है, अवाम अपने किसी मसीहा की तलाश में है। अवाम यहाँ पर पर्सनैलिटीज़म या आइडियलिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करती। अवाम चाहती है कि वो लोग आएँ जो हमें इस सिस्टम से नजात दिला सके, जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो उनके राइट्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। तो इसके लिए खान साहब का जो शुरू से एक स्टाइल रहा है जिसमें उन्होंने इस सिस्टम को ललकारा है, गो कि उन्होंने इस सिस्टम में से ही लोगों को अपने साथ में लाया। लेकिन आज सिस्टम से ही निकले हैं। देखें 3.5 साल का अगर हम उनकी हुकूमत का मुआवजा कर लें, अगर ये लोग उनके साथ फेयर होते जो करप्शन के खिलाफ आए थे, तो उनके उस दौर में करप्शन ना होती और रूल ऑफ लॉ होता। और जिसकी हम जस्टिस की बात करते हैं, हम पता चलता है यहां पर वो जस्टिस जो इंप्लीमेंट हो गया है, तो मुझे बताएं कि कोई रोल मॉडल ना बन जाती उनकी जमात। उनकी सबसे बड़े जवाल की वजह उनके अपने वही रुफका हैं जो मैं समझता हूं। देखिए कोई भी है, मैं XYZ किसी का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूं कोल फेल का तजाद जिसमें है वो मुनाफिक है। अगर वो भी मुनाफिकाना अमल के जरिए से कौम को सिर्फ फतह करना चाहते हैं, तो मैं ये समझूंगा कैसे वो खान साहब के उस नजरिए की पासदारी कर पाएंगे जिसकी वो बात करते आ रहे हैं। देखा कि हमने कि वही जो 25 साल करप्शन के खिलाफ तहरीक थी, जब उनको हुकूमत मिली तो उनके तमाम जितने भी हवारी थे, जितने भी उनके साथ रुफका थे, जो भी उनके साथ उस वक्त किसी जगह पे भी थे, वो तो मालो मता कमाने में लग गए। तो यही उनका सबसे बड़ा जवाल का एक जो अगर हम अक्स बंदी करें तो उसमें से ये निकलता है। अगर ये रुफका, ये लोग, ये जितने भी उनके चाहने वाले थे जो उनका नाम लेते हैं, जो इनको बेचते हैं, जो उनके जरिए से अपनी सियासी इनकम में किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट लाना चाहते हैं, अगर उनके नजरिए पे ये कारबंद हो जाते, करप्शन ना करते, लोगों को डिलीवर करते, सीने से लगाते, वो तमाम जागीरदार, मैं कहता हूं अपने मजारों के लिए रास्ते खोल देते, वो जमीनें दे देते कि जस्टिस तो यही है, वो तमाम वडेरे, वो तमाम जितने भी यहाँ पर मिल ओनर्स हैं, वो अपने लोगों को ही हुकूक देने दे देते, तो ये तहरीक जो थी ये आइडियल ना बन जाती। इन्होंने दूसरे लफ्जों में तरीके इंसाफ की पुष्ट के ऊपर खंजर मारा है। अवामी सतह पर जो लोगों को मुआवजा मिला है देखने का वो यही है कि खान साहब की एक शख्सियत है जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियली करप्शन में कोई उनका दुश्मन भी होगा तो बात नहीं करेगा। लेकिन बट साहब प्रॉब्लम ये है कि इसीलिए तो इस वक्त आप कहने के दूसरे लोग उनके साथ खड़े हैं, जिस तरह से भी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं एग्री करती हूँ, मैं हर बात से एग्री करती हूँ कि नई सियासी जमातें जो बनती हैं, इन्हीं सियासी जमातों में से कुछ लोग टूट टाट के नई सियासी जमात में चले जाते हैं। कोई बाहर से बहुत कम लोग हैं जिनको जो है वो इजाज़त दी जाती है या जिनको मौका दिया जाता है या जिनको चांस दिया जाता है। और गरीब तो सोचे भी ना कि वो सियासत में कभी आ सकता है, जब तक वो अमीर नहीं हो जाता। लेकिन अभी इसी बयानिए को आपको नहीं लगता कि अवाम ने बाकी सारी सियासी जमात को रद्द कर दिया है, सिर्फ PTI इमरान खान के नाम पे है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है? क्या आवाम को समझ नहीं आ गई इस बात की? जी बिल्कुल समझ आ गई है। और ये इमरान खान के लिए जो उनकी रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ना, जो उनकी तहरीक है, उसके लिए बड़ी खुश आइंद है। मेरे जैसा आम इंसान जो इस सिस्टम का सताया हुआ है, जो चाहता है कि मैं रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकूं, उसके लिए एक खुश आइंद है कि भी एक ऐसा शख्स जो है वो कमिटमेंट का पक्का है। वो शायद हो सकता है उन्होंने नाप तोल लिया हो, देख लिया हो अपने उस जो उनका टेन्योर था हुकूमती टेन्योर में, कि जो उनके साथ ये लोग आए हैं वो देखते रहे होंगे कि ये क्या करते हैं। हाँ, अगर इमरान खान उस वक्त करप्शन करते, वो कोई फैक्ट्री लगाते, मिलें लगाते, कोई यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते, बाहर जाकर कोई सराय महल खरीद लेते, तो हो सकता है कि अवामी सतह पर उनकी पजीराई ना होती। अवाम जो है वो समझ बैठे, और ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर है आने वाले वक्तों के लिए। यही एक वो बारिश का पहला कतरा
होता है, फायदा साबित हो सकता है जो इस मुल्क में बहार लेकर आए, वो यही है। जा सकती है, लेकिन अभी वो बहार आती है, बारिश का बरसता नजर नहीं आ रहा, आएगी फायदा। बादल जो इकट्ठे हो रहे हैं वो इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं बारिश के लिए। पाशा साहब से मैं भट्ट साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए पाशा साहब से जानती हूँ। पाशा साहब, पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इमरान खान का जिक्र तक नहीं किया। यार सादिक साहब ने टॉन्ट कह लें, उन्होंने तनकीद कह लें, जिस भी सेंस में कह लिया। यार सादिक साहब ज़रा कम ही तनकीद करते हैं जब से वो स्पीकर बने हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो ठीक ठाक करते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इस विज़िट को पॉजिटिव भी करार दिया। अब इसका मतलब जो डायस्पोरा ने इतनी मेहनत की थी, एक नया वहाँ पे लोगों को या कांग्रेसमैन्स को या बाकी पॉलिटिशियंस को उन्होंने बताया था यहाँ के हालात के बारे में, यहाँ पे तो मुलाकात किसी से भी नहीं करके गए, खान साहब से भी नहीं। बड़ी प्यारी आपने बात कही। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भट्ट साहब ने जो बात कही जी सर, शॉर्टली कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार हैं और बाकी जो उनके लोग थे उन्होंने करप्शन की। अच्छा, ये क्या अजीब बात है कि एक हुक्मरान के साए के अंदर फर्रा गोगी जैसी औरतें जो हैं वो डीलें कर रही हैं, और जो 63 आदमी जिनको तोड़ के पार्टी से 2018 में पीटीआई के अंदर शामिल किया गया, वो करप्शन के कोहे ग्रां थे, पहाड़ थे। तो इमरान खान साहब को उस वक्त पीटीआई ने तो नहीं ना उनको तोड़ा था, तोड़ने वालों ने तोड़ा ना, तो शामिल किसमें किया था? पीटीआई में। तो उस वक्त इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा था कि जो लोग मेरे साथ जोड़े जा रहे हैं उनका माजी क्या है और उनका हाल क्या है और वो क्या करेंगे। इसलिए भट्ट साहब ने बड़ी मासूमियत से इमरान खान साहब को कहा जी कि वो तो बड़े नेक परहेजगार हैं लेकिन बाकी लोग करप्ट थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये उनकी रहनुमाई के अंदर, उनके साए के अंदर जब ये होता है तो वो भी जिम्मेदार हैं इस बात के, वो इस चीज़ से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब को नॉलेज में था जो सारा 100%। नाज़रीन, मुझे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। पाशा साहब, मुझे माज़रत चाहती हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। ब्रेक से वापस आते तो नाज़रीन यहीं से पाशा साहब की बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।